I go down, go, I go down, go. I go down, go, I go down. I go down, go, I go down, go. I go down, go, I go down. I go down, go, I go down, go. I go down, go. I go down. I go down, go, I go down, go. I go down, I go down. I go down, go, I go down, go, I go down, I go down, go. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Jaya Radhe Jaya Radhe 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 Hridayo Haribo 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 जय जय बामन भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, समस्त वैष्णव चरण दंडवत 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 निदाय गुरु हरिबोल। जय श्री राम। जय श्री राधे महाराज, दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। आपनकर सुंदर कीर्तन रे आम्भे माने आप्लुत साप्लुत वर्तमान गौर प्रसाद कहूची। गौर प्रसाद जय श्री राधे। श्रीमद गीता कथा रे उपस्थित समस्त विद्वान मंडली, वैष्णव मंडली तथा गुरुजन माननकु प्रणाम ज्ञापन पूर्वक श्री आचार्य पादंक चरण रे सादर प्रणाम ज्ञापन पूर्वक श्री रूपेश प्रसाद को अनुरोध करुछि से विगत गीता सत्रर सारांश उपस्थापन करंतु। राधे राधे। जय जय श्री राधे। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। अंकुश अंबर कुलिश कमल जब ध्वजा धेनु पद। शंख चक्र स्वस्तिक जंबू फल कलश सुधाहृद। अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध रेखा। अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विशेखा। सीतापति पद नित वसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। चरण चिन्ह रघुवीर के संतनि सदा सहायका। संतनि सदा सहायका। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी की महती अनुकंपा से हम सभी को पूज्य आचार्य चरण श्रीमद् भगवद गीता जी के दुर्लभ सत्संग रस में नित्य सराबोर कर रहे हैं। यह दास आचार्य चरण एवं सभी संतों वैष्णवों एवं श्रोत्र वृंदों के श्री चरणों कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता है। सप्तम अध्याय के अंत में श्री भगवान द्वारा उद्धृत सप्त पदार्थों के स्पष्टीकरण हेतु श्री अर्जुन जी ने प्रत्येक पदार्थ का आशय पूछते हुए पहले 2 श्लोकों में अष्टम अध्याय के अपने 7 प्रश्नों को पूछा है। श्री भगवान ने अष्टम अध्याय के 3 श्लोक में पहले प्रश्न त्रय का उत्तर दिया है, जैसा कि कल सारांश कथन के अंतर्गत चर्चा हुई थी। अब 4th श्लोक में श्री भगवान ने अगले 3 प्रश्नों का जो समाधान किया उसे श्री आचार्य चरण ने किस प्रकार समझाया उसका स्मरण करते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरः।
अधियज्ञो हमें वात्र देह देख भृतांबर। श्री आचार्य चरण ने कहा कि भवती इति भावः, भाव यानी वस्तु, पदार्थ, सत्ता, और सभी पदार्थ तो विनाशी हैं, नश्वर हैं, क्षर हैं। क्षरती इति क्षरः। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्षरो नश्वरो भावः पदार्थो घटपटादिरधिभूतम अधिभूत शब्दवाच्यः। यानी विनाशशील सभी पदार्थों को अधिभूत के रूप में ग्रहण किया गया है। तो कौन से पदार्थ विनाशी हैं या अधिभूत हैं? इसके लिए श्री आचार्य पाद ने कहा भूतम अधिकृत्य स्थितम इति अधिभूतम, अर्थात प्राणी मात्र के शरीर से संबंधित सभी पदार्थ नश्वर हैं और वे ही सभी पदार्थ जो नश्वर हैं, जो विनाशी हैं, वे सभी अधिभूत हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जी के चौथे प्रश्न का समाधान हुआ। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि है कि अधिदैव क्या है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि पुरुषश्च अधिदैवतम। देखिए, पुरुष का एक अर्थ तो है पापों को, समस्त पापों को दग्ध कर देने वाला, अर्थात परमात्मा। परंतु यहां अधिदैव का अर्थ जो पुरुष बताए गए हैं वे कौन हैं, आइए देखते हैं। सभी जीवात्मा व्यष्टि पुरुष हैं तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के अभिमानी देवता समष्टि पुरुष हैं। उन्हीं को हिरण्यगर्भ, संकर्षण, ब्रह्मादि नाम से जाना जाता है। सभी व्यष्टि पुरुष उन्हीं के अंश हैं। श्री शंकराचार्य पाद जी कहते हैं कि आदित्य मंडल में उपस्थित, आदित्य मंडल में अवस्थित हिरण्यगर्भ नामधारी जो पुरुष हैं वे ही अधिदैव हैं। वे सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं को नियंत्रित करते हैं। वे ही व्यष्टि पुरुष के रूप में भी सर्वत्र व्याप्त हैं। तो सभी जीव उन्हीं के अंश हैं, और क्योंकि वे व्यष्टि पुरुष के रूप में व्याप्त हैं और सभी व्यष्टि पुरुष उन्हीं के ही अंश हैं, इसीलिए उन्हें व्यष्टि विराट पुरुष भी कहा जाता है। वे ही व्यष्टि विराट पुरुष हिरण्यगर्भ समष्टिलिंग शरीराभिमानी देव, वे ही अधिदैव हैं, ऐसा श्री आचार्य चरण ने कहा। अब पांचवा प्रश्न का समाधान भगवान ने कर दिया। अब छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, जिसकी अर्चना हो वह यज्ञ है, अर्थात यज्ञ के साधन एवं यज्ञ का साध्य दोनों ही यज्ञ रूप हैं। यज्ञ का साधन तो यह मनुष्य का साधन यह शरीर है, इसीलिए क्योंकि यज्ञ का साधन यह शरीर है वह भी यज्ञ रूप ही है। और यज्ञ के साध्य तो भगवान है, पर यज्ञ के साध्य भगवान क्यों है, इसको प्रतिपादित करते हुए श्री आचार्य चरण ने कहा कि यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म करने से मुक्ति मिलती है, साधारण सी बात है, और नहीं करोगे तो कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। तो इस भगवान यज्ञ रूप कैसे है, इससे यह कैसे प्रतिपादित होता है, क्योंकि यह शरीर तो यज्ञ का साधन है, यह तो स्पष्ट है। और अगर यह शरीर, इस शरीर का जो मुख्य करणीय कर्म है, कार्य कर्म है, वह यह है कि भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए, और अगर वह भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होता है तो यह उसी का कार्य कर्म है, करणीय कर्म है। तो अगर यज्ञ का साधन जो कुछ करता है वह यज्ञ ही है, तो यह यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है, यानी भगवान के लिए ही किया जा रहा है। तो भगवान के निमित्त अगर यज्ञ किया जा रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि भगवान ही यज्ञ के निमित्त हैं, यानी भगवान ही यज्ञ के साध्य हैं। तो इसे यह प्रतिपादित हो जाता है। अब यज्ञ रूप शरीर के अधिकारी पुरुष अंतर्यामी भगवान वासुदेव ही हैं, वे ही अधियज्ञ हैं, यज्ञ के अधिकारी हैं, वे ही अधियज्ञ हैं। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ यह शरीर है, तो ये शरीर के अधिकारी वे हैं
अधियज्ञ भगवान श्री वासुदेव। तो अंतर्यामी का आशय यहाँ पर स्पष्ट करते हुए आचार्य शरण ने कहा कि शरीर रूपी वृक्ष के दो पक्षी हैं, एक सभी फलों को ग्रहण करता है, वह जीवात्मा है, दूसरा केवल साक्षी है, वह कुछ खाता नहीं, केवल देखता है। तो वह साक्षी रूप जो पक्षी है वह अधिक तेजस्वी है, वह परमात्मा है। जीवात्मा निज स्वरूप से विस्मृत है, परमात्मा उसको नियंत्रित करने वाले हैं, इसीलिए परमात्मा अंतर्यामी ही अधियज्ञ हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, वे ही अधियज्ञ हैं। अब श्री अर्जुन जी का अंतिम प्रश्न था कि हे मधुसूदन, हे पुरुषोत्तम, प्रयाण काले नियतात्मभिः कथम ज्ञेयः असि। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंतकाल में भगवत स्मरण पूर्वक शरीर का परित्याग करते हैं वे निश्चित भगवत धाम को प्रयाण करते हैं, भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कहते हैं कि किनका ध्यान अंतकाल में करना चाहिए, क्या अधिभूत का या अधिदैव का? नहीं, केवल और केवल भगवान श्री हरि श्री रघुनाथ जी का स्मरण करना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। और श्री मधुसूदन सरस्वती पाद यहाँ पर बड़ी सुनिश्चित पद्धति व्यक्त कर रहे हैं भगवत स्मरण की। अरे क्या ये एक साधारण कार्य है कि जीवन भर संसार में फंसे रहें और सोचें कि अंत में तो भगवत स्मरण करना ही है तो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? क्या यह इतना सरल है? नहीं, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी। इसलिए जैसे विद्यार्थी सोचे कि यह तो आसान है, इसको परीक्षा के समय कभी कंठस्थ कर लेंगे, पर परीक्षा के समय चित्त में डर सा रहता है, कुछ भी नई वस्तु याद नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार प्रयाण काल में जब शरीर छूटता है तो चित्त व्यग्र होता है, वह स्मरण काल नहीं है, वह विस्मरण का समय होता है, उसमें कुछ नई वस्तु स्मरण नहीं आती, वही स्मरण में आता है जो जीवन भर किया है। इसलिए सदा भगवत स्मरण कर उसे उन्नतावस्था में पहुंचाने से ही लाभ होगा, ऐसा श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं। और रही बात कि किस प्रकार भगवान ज्ञेय हैं, जैसा कि अर्जुन ने पूछा, तो भगवान का स्मरण ही उनका ज्ञान है, बाकी भगवान को तत्व से जान पाना असंभव जैसा है। फिर श्री भगवान आगे कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, जो अंतकाल में जिस जिस विषय की चिंता करते हैं, जिस जिस विषय का चिंतन करते हैं और चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, उसी के चिंतन में तन्मय वे उसी के भाव को प्राप्त होते हैं।
तो इसकी विस्तृत चर्चा तो आचार्य चरण आगे के सत्र में करेंगे ही। यह तो केवल उसका साधारण अर्थ हुआ है, अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका भी हुई नहीं है। तो इस प्रकार इन गूढ़ाति गूढ़ विषयों को अत्यंत बोधगम्य कर हम सभी के हृदय पटल पर इन सब भावों को, इन सब अर्थों को अंकित करने के लिए श्री आचार्य चरण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हुआ, श्री श्री श्रवणा द्वादशी, विजया महाद्वादशी या श्री वामन द्वादशी की पवित्र तिथि पर श्री वामन देव भगवान को प्रणाम करता हुआ मैं आगे का कार्यक्रम संपादित करने के लिए प्रार्थना करता हूं। जय निताई, जय गौर। जय जय श्री राधे। आयुष्मान विपेश प्रसाद धन्यवादार्ह। खूब सुंदर एवं सरल भाव परम वंदनीय आचार्य पादकर मुख निसृत विगत दिनर अमृतमयी व्याख्या को सारांश रूप उपस्थापन करिसेंती। वर्तमान आंभे परम वंदनीय आचार्य आज विशेष कारणवशतः अनुपस्थित रहिसेंती। तेणु विशेष आज आंब मानकर एई सत्र रे परम वंदनीय वैष्णव आचार्यगण एई परम पवित्र दिवस रे उपस्थित अछंती। सेमानकर यदि वचनामृत को आम माने किछि आस्वादन करि परिबा ताहले आम माने कृतार्थ हेबा एवं ए दिनटी हमर सार्थक हेबो। अतएव मु आमर वंदनीय एई समूह रे समुपस्थित वंदनीय श्रीधर महाराज को अनुरोध करुछि से यदि सप्त पदार्थी बा ए सप्त पदार्थर आलोचना माध्यम रे यदि आम किछि कहिबे बा गीतार आमर जो व्याख्यान परंपरा अव्याहत रही ता विषय रे तांकर अनुभव को भगवत गुण कीर्तन माध्यम रे किछि उपस्थापन करिवे ताला माने कृतार्थ हेबु। आज बामन द्वादश पवित्र मुहूर्त रे महाराज को अनुरोध करी एवं यही समूह मध्य आमर वंदनीय बोधायन महाराज उपस्थित अछंती एवं अन्य सुधी वृंद, वरेण्य विद्वत वृंद, भक्त वृंद, गीता कथा रस पिपासु सज्जन गण मध्य उपस्थित अछंती। तेणु समस्त को मु प्रणाम विज्ञापन करी श्रीधर महाराज को अनुरोध करुछि से तांकर यदि अमृतमयी वाणी को आम मान को शुणेबे ताला हम कृतार्थ हेबु। महाराज आपण को सब बेले आम माने एई भली अडुआरे पकई दउछु किंतु आमे जानिछु जे आपण अछंती माने आपणकर मुख निसृत वाणी एरु आमे किछि लाभ नै परिबु। तेणु महाराज आपण को बारंबार प्रणाम पूर्वक अनुरोध करुछि यदि किछि निवेदन करिवे ताला हम कृतार्थ हेबु। आज्ञा जय गौर। विष्णु प्रसाद। हाँ मोर गोटे छोट प्रश्न थिला जे रूपेश प्रसाद कहिले हिरण्यगर्भ होचंदी ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा एक कथा कोठी लेखा अछंती? माने एक कथाटा कोठी कोन जगह रे प्रकाशित होइजंती हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से जिनस टिके जानिया चाहूची। अच्छा ठीक अछि, ठीक अछि। ताले ए प्रश्न टिके हम सादर ग्रहण कलु। या को सटीक सप्रमाण यदि कहबू ताले हम परवर्ती समय रे उत्तर देबू यदि असुविधा नै। आज्ञा ठीक आज्ञा है, धन्यवाद महाराज। सर्वेभ्यो नमो नमः। अच्छा काली प्रसाद प्रभु महाराज कोन टिके गत थर मु कहया पर टिके समय अतिक्रांत हेइला तेणु बोधायन महाराज कहि पार नथिले। आज्ञा। तेणु आगामी सत्र रे तांको दिया जो कहैतिला आज्ञा से वर्तमान अछन तांको दियंतु। हौ ठीक अछि। बोधायन महाराज अछंती ताले? हां अछन अछन देखिली। अच्छा बोधायन महाराज दंडवत महाराज।
बुधान महाराज उपस्थित नाहंती ହଁ ଥିଲେ ବୋଧେ ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ। ठीक अच्छे आम मैंने आपन को हम पर कहबू ताले प्रथम अवनींद्र जी को अनुरोध को अवनींद्र जी से निवेदन ଆଜ୍ଞା करता हूँ पहले वो इस सप्त पदार्थ के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे तो हम कृतार्थ होंगे। अवनींद्र जी ये 4 श्लोक की आवृत्ति करके आप सप्त पदार्थ के ऊपर कुछ आप अपना विचार रखें। जय सिया राम। सादर प्रणाम सभी आचार्यों को, सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। इनको श्लोकों का वाचन भी करना होगा। हाँ, श्लोक का वाचन करके सप्त पदार्थ के ऊपर आप अपना विचार रख सकते हैं। ये ओम नमो नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायणाय। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टमोऽध्याय। किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं योऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्तो
कृत्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। जैसा कि रूपेश प्रसाद ने बहुत अच्छे ढंग से कल के विषय को पुनर्प्रतिपादित करते हुए बहुत आनंद प्रदान किया, उसी विषय पर आगे चलते हुए उन्हीं बातों को पुनः स्मरण करना है। भगवान अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देते हुए कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। देहभृतां वर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। देहभृतां वर अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि देहधारियों में श्रेष्ठ हो तुम हे अर्जुन। क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव हैं और इस शरीर में अंतर्जामी रूप से मैं स्वयं अधियज्ञ हूं। अधिभूतम क्षरो भावः, जो नाशवान पदार्थ हैं जैसे जल, तेज, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन्हीं से समस्त संसार की रचना हुई है। तो जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और नाशवान है, ऐसी जो सृष्टि है उसको ही हम अधिभूत कहते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। सभी लोग इस विषय को अनुभव भी करते हैं। पुरुषश्चाधिदैवतम, यहाँ अधिदैव आदि पुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को ही अर्थ के रूप में प्रकट करता है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान जब संकल्प करते हैं तो सबसे पहले उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो सृष्टि की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ही करते हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि होती है, इसीलिए उनको अधिदैव कहा गया है। और भगवान कहते हैं कि अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूं, अर्थात शरीर में अंतर्जामी रूप से मैं ही हूं। अंतर्जामी होने के लिए भगवान ने गीता में कई जगह स्मरण किया है। जैसे 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने स्मरण किया है कि हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम। ऐसे ही 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने स्मरण किया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। फिर 18वें अध्याय में भी भगवान ने स्मरण किया है 61वें श्लोक में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। तो अपने अंतर्जामी स्वरूप से
सभी भूतों के हृदय में विराजमान होने को भगवान ने बताया है, स्पष्ट किया है। मनुष्य शरीर में जो भगवान ने कहा है कि अहम एव अत्र देहे, अत्र देहे में भगवान प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई भगवान की प्रेरणा को यदि कोई समझ सकता है तो वह मनुष्य शरीर ही है। उस प्रेरणा को स्वीकार करना भी इस मनुष्य शरीर के ही वश में है, और उस स्वीकार के अंतर्गत उसी तरह का आचरण करना भी, और आचरण करके तत्व को प्राप्त करने की जो सामर्थ्य है वो मात्र इस मनुष्य शरीर में है। क्योंकि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। ऐसा एक दोहा भी गोस्वामी जी स्मरण करते हैं कि जो मनुष्य शरीर पा करके और भगवान का भजन करके अपना उद्धार नहीं कर लेता, उसके बारे में नुकसान बताते हुए गोस्वामी जी एक दोहे के दूसरी लाइन में स्पष्ट करते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को और भगवान को हम दोष भी लगाए तो बेकार की बात तो होती है, उसमें भी यथार्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर का एकमात्र फल है सभी कामों को प्राथमिकता में न रख करके सर्वोच्च प्राथमिकता भजन की होनी चाहिए। मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलना। जो विवेक मनुष्य को प्राप्त है वह दूसरे प्राणियों को नहीं प्राप्त है, यह हम ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किसी भी और शरीर में यह विवेक जागृत नहीं है, मात्र मनुष्य शरीर में है। इसलिए मनुष्य को यह अवसर है कि वह इस शरीर के रहते रहते ही उस परमात्मा तत्व को अनुभव कर ले, प्राप्त कर ले और उसी तरह का आचरण करे। यह दुर्लभ अवसर है, यह व्यर्थ चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो एक और भी उदाहरण है कि आदमी जब भगवान का भजन नहीं करता है तो बहुत नुकसान होता है। वो लौट करके इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है। एक जन्म के नाते हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, एक एक योनि में पता नहीं कितने कितने बार जन्म लेने होंगे। यह बहुत बड़ा नुकसान है। इसी नुकसान से बचने के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमको सावधान होना चाहिए। जहां मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उस कर्मों के करने में राग और द्वेष होते हैं। मनुष्य जहां राग और द्वेष नहीं करता तो उसके कर्म भगवान की प्रेरणा के अनुसार शुद्ध माने जाते हैं, यानी बंधन कारक नहीं होंगे। और जहां कहीं भी राग और द्वेष होगा वहां वो बंधन कारक होगा, क्योंकि इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसवागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये तृतीय अध्याय का 34वां श्लोक है कि राग और द्वेष के कारण ही मनुष्य बंधन में आता है। और ये
उसके महान शत्रु हैं। इतना बड़ा शत्रु कोई नहीं है जितना राग और द्वेष है। यदि हम राग से काम करेंगे तो उसके वशीभूत हो जाएंगे, द्वेष से काम करेंगे तो भी उसके वशीभूत होकर के उसका परिणाम प्राप्त करेंगे। श्रुति और स्मृति भी भगवान की ही आज्ञा है, तो श्रुति और स्मृति के विरुद्ध जा करके भगवान प्रेरणा नहीं करते हैं। भगवान श्रुति और स्मृति को अपनी आज्ञा के रूप में बताते हैं। तो मनुष्य कामना के वशीभूत न हो तो ही उसके द्वारा स्वाभाविक कर्म विहित कर्म हो सकता है। जैसे कि 18वें अध्याय में सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता करके स्मरण किया है। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तपरूप कर्म कभी भी त्यागने के योग्य नहीं होते हैं। इसी शरीर में परमात्मा है, ऐसा जो कोई भी मनुष्य जान लेता है वह श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन तो भगवान को बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि नारायणी सेना भगवान ने एक तरफ रख दिया, एक तरफ अपने को निहत्थे रख दिया। फिर भी अर्जुन ने कहा कि भगवान हम आपको ही वर्ण करते हैं, आप चाहे युद्ध करें या न करें, जो दृष्टि मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड की आयु को छीन सकता है उसको छोड़ करके भला नाशवान पदार्थों को लेकर के हम क्या करेंगे। ये तो अर्जुन जी ने हम लोगों को अवसर दिया है पहचानने का कि कैसे परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। और भगवान भी अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर 3 प्रकार के माने जाते हैं शरीर। तो इन शरीर के कण कण में परमात्मा है और उसी का अनुभव करना मनुष्य जन्म का खास लक्ष्य है। इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए परमात्मा के आज्ञा के अनुसार ही काम करना है। जल जैसे आकाश स्वच्छ होता है तब हमारे और सूर्य के मध्य में कोई पदार्थ नहीं दिखता है, लेकिन वहां परमाणु रूप से जल तत्व रहता है। वही जल तत्व सूर्य के ताप से भाप बनता है और भाप जब घनीभूत होता है तो बादल के रूप में दिखता है। बादल में जो जल कण विद्यमान होते हैं वो जब एकत्र होते हैं तो वो बूंदें बन जाती हैं। वही बूंदें जब ठंडक के संयोग में घनता प्राप्त करती हैं तो ओले यानी बर्फ बन जाती हैं। यह जल तत्व का स्थूल रूप है। ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म परमाणु रूप से जल तत्व है। अधिजज्ञ यानी व्यापक विष्णु भगवान के रूप में भाप रूप से जल है। अधिदैव यानी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बादल रूप से जल है। अध्यात्म यानी अनंत जीव, ये जो अनंत जीव रूप बूंदें हैं वो भी जल हैं। कर्म यानी सृष्टि रचना रूप जो कर्म है वो वर्षा की क्रिया है। और अधिभूत यानी पूरी भौतिक सृष्टि बर्फ रूप से जल है। एक ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षा की क्रिया, बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखता है, लेकिन है तो वास्तव में एक ही जल रूप ही। इसी प्रकार एक ही परमात्मा तत्व ब्रह्म भी है, अध्यात्म भी है, कर्म भी है, अधिभूत भी है, अधिदैव भी है और अधिजज्ञ के रूप में अलग अलग समझ में आते हुए भी मूल तत्व रूप में एक ही है। इसी बात को भगवान 7वें अध्याय में वासुदेवः सर्वम के रूप में स्पष्ट किए हैं। सब कुछ वासुदेव ही है
इसमें जो विवेक दृष्टि है, तो शरीर शरीरी, प्रकृति पुरुष, ये दो भेद माने जाते हैं। उपासना की दृष्टि से हम देखें तो उपास्य एक हुआ जो परमात्मा है, और उपासक जीव है जो हम लोग हैं। और इसमें त्याज्य क्या है? प्रकृति का कार्य जो संसार है, ये तीसरा भेद हो जाता है। तीनों को समझने के लिए दो भेद, परमात्मा के ब्रह्म निर्गुण और अधजगे यानी सगुण, जीव के भी दो भेद, अध्यात्म यानी सामान्य जीव जो कि बद्ध जीव हम लोग हैं, और एक अधिदैव है जो कारस पुरुष जो कि मुक्त है। संसार के भी दो भेद हैं, कर्म जो परिवर्तन का घनीभूत रूप है, अधिभूत जो कि पदार्थ के रूप में आता है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कौन व्याप्त है? वो एकमात्र परमात्मा ही है जो व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वम, 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, उसका एक भाग है ये। ऐसे ही येन सर्वमिदं ततम, 18वें अध्याय में 86वें श्लोक में ये आया है। सब संसार कहाँ स्थित है? ये परमात्मा में ही है। इस परमात्मा, इसको कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम, हमारे में ही सब कुछ है, ओतप्रोत प्रोत है। ये 7वें अध्याय के 7वें मंत्र में आया है। 7वें अध्याय के 19वें मंत्र में यही बात स्पष्ट की गई है, जैसे वासुदेव सर्वम। ऐसा जो दृष्टिकोण रखता है वो पर महात्मा बहुत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यद्यपि परमात्मा अपने को सुलभ बताते हैं, तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, जो नित्य युक्त, जो रोज लगे हुए योगी हैं, उनके लिए परमात्मा सुलभ है, लेकिन वो महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा कह रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। अपने को दूसरी जगह स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने जगह जगह गीता में अपने को स्पष्ट किया है। सभी वचनों का सामंजस्य कैसे हो, सबकी संगति कैसे हो, इस पर विचार किया जाए तो संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण करने के लिए जितने भी साधक हैं, वे सभी क्या चाहते हैं? यानी संसार से छूटना चाहते हैं। और क्या चाहेंगे? और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। बराबर रहने वाली शांति और अनंत सुख मिले, जिसमें अशांति न हो, दुख का अंश मात्र न हो, ऐसा जो विचार करता है उसे हम साधक कहते हैं। परंतु जो संसार में ही रहना चाहते हैं, संसार से ही सुख लेना चाहते हैं, सांसारिक संग्रह और भोग में ही लगे रहना चाहते हैं, और संसार के सुख दुख को भोगते रहते हैं, वे तो साधक नहीं होते। उन्हें तो हम संसारी कह सकते हैं। तो वे जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, उनको इससे छूटने का कोई उपाय नहीं मिलता है। संसार से संबंध रहेगा तो सदा रहने वाली शांति और सुख तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन सदा अशांति और दुख मिलेगा। दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा सभी मनुष्यों का सीधा सीधा अनुभव है। इसमें किसी को कोई इफ बट नहीं होना है। परमात्मा अनंत आनंद के स्वरूप हैं, वहीं दुख का अंश मात्र नहीं हो सकता, और तो बाकी सब जगह दुख ही दुख है।
परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, दूसरा कोई आनंद घन नहीं है। इसीलिए परमात्मा को प्राप्त करने का निर्देश मिला है, और जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। हम देख रहे हैं कि समय का अभाव है, 5 मिनट बचा है। आचार्य चरण को सत्र समेटने के लिए भी इतना समय चाहिए, तो हम आज के लिए प्रणाम करते हैं, फिर सभी सज्जनों को प्रणाम करते हैं। आचार्य चरण की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमो नारायणाय। जय श्री राधे। अवलेंद्र जी, आपको हम गीता चिंतन चंचरिका की ओर से असंख्य धन्यवाद, पुष्पांजलि गुरु से भी निवेदन करते हैं। हम यह निवेदन करते हैं कि हमारे पास तो परम वंदनीय आचार्य श्रीधर महाराज जी है, यदि 2-4 मिनट वो आशीर्वाद हम सभी को दे सकते हैं तो हम कृतार्थ होंगे। श्रीधर महाराज जी, आप कुछ आज के तो वामन द्वादश के पावन दिवस पर यदि कुछ सर्वेभ्यो नमो गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाळे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजिर गीता चिंतन चंचरिका सत्र रे उपस्थित समस्त गुरुजन, वैष्णववृंद, विद्वद्वृंद, मातृवृंद, शुद्धि सज्जन वृंद समस्त मोर यथायोग्य अभिवादन एवं प्रणति प्रसूनांजलि विनिवेदन करुछि। आज आम मानकर यही सत्रर भूषण एवं जीवात स्वरूप आचार्य पादंकर अनुपस्थिति एवं अनुपस्थिति रे आमर कालीप्रसाद प्रभु सब अतर्कित भाव मत कहती किसी असुविधा नहीं, किंतु जेहेतु गत काली गत सत्र रे मत एवं बोधायन महाराज कहवाई कहुला कि मोर समय अतिक्रम हो जाता से समय अभाव से कही पार नथिले, तेणु कहवाई निवेदन करथिले, किंतु से थिले तापर ऑफलाइन हो जान नी देखला ऑफलाइन हेले आउ जाओ आमर अवनीन्द्र जी बहुत भल भाव उपस्थापन कले। तापर उपसंहृत वक्तव्य प्रदान करने मत कालीप्रसाद प्रभु कृपादेश करछन्ती, किंतु प्रवाह को आरंभ करिया गले वर्तमान समय रोकुछि, तेणु विषय आरंभ करिया अनिच्छुक कहीं विषय आरंभ कर कुआड़ चली तार समय अतिक्रांत हो धृष्टता हम आ समस्त निर्धारित समय मध्य सत्र उपस्थित अनुपस्थित होगापी समस्ते निज निज स्केड्यूल अच्छा, तेणु मात्र 2 मिनिट अच्छी, 2 मिनिट मध्य कौन सी विषय आरंभ करने संभव नुहे, जेहेतु कृपा आदेश को शिरोधार्य कर केवल मोर वाणी प्रसूनांजलि प्रदान करने एवं आपण मानकर एवं आचार्य पादंकर कृपा प्रार्थना करने कृपा लाभ करने केवल आदेश पालन करुछि। आज विशेष तिथि वामन द्वादशी, भगवान वामन आविर्भाव तिथि, वामन चरित्र विशेष भाव विशद भाव अष्टम स्कंधे वर्णित अच्छा, से विषय आलोचना कले घंटा घंटा चलीगले तार पूर्णाहुति हम ना, तेणु मात्र 1 मिनिट अच्छी, बाकी 1 मिनिट मध्य कौन कहबी, तेणु आपण मानकर तरफरु एवं मोर निज तरफरु एवं गीता चंचरिका तरफरु आमे माने समस्ते आज वामदेव चरणार बिंदरे आमर वाणी पुष्पांजलि एवं प्रणति कुसुमांजलि समर्पण करुछे। वामदेव को आमे प्रार्थना करुछे जेभली से आम मान कृपा करंतु, तांकर कृपार अभिषिक्त होई आमे माने एई गीता सत्र एवं प्रातकालीन सांध्यकालीन 2टी भागवत सत्र जेभली आजीवन आमे माने निर्विघ्न रे श्रवण कीर्तन करी
तांकर कृपा भाजन ही आमर जो चरम परम लक्ष्य अच्छी कृष्ण प्रेम प्राप्ति बा भगवान प्रेममयी सेवा प्राप्ति नित्य धाम रे गोलोक वृंदावन रे ताहा जेभଳି आम मानक लाभ हो पारियो एवं से लाभ रे जहाँ जहाँ बाधा विघ्न यही जगत रे माया द्वारा आसे ताकू दमन करी जेभଳି बामन देव आम मानक कृपा करी निर्विघ्न रे आमर चरम परम लक्ष्य रे पहुंची पारिबा सेही भଳି आमर आजीवन जेभଳି निर्विघ्न रे ताहा साधन हो पारियो सेही कृपा करिया पई मो तरफ सत्र तरफ बामन देव चरणाबिंद प्रार्थना करुच्ची से जेभଳି कृपा करी बलिदेव को आत्मसात करी अद्यावधि तांकर द्वार रे सुतल लोक रे गेट कीपर ही रही तांकर आत्मनिवेदन भक्तिर जो 64 प्रकार अंग अच्छी तन्मध्य आत्मनिवेदन अन्यतम से आत्मनिवेदन रे बलि हेले आचार्य यही विषय बहुत शिक्षणीय विषय अच्छी किंतु वर्तमान समय हो गला तेणु आत्मनिवेदन अंग को साधन करी आमर कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कहते यद्यपि भक्तिर अनेक प्रकार अंग अच्छी किंतु केह साधे एक अंग केह साधे बहु अंग भक्ति रसामृत सिंधुरे एवं आचार्य मान द्वारा प्रणीत विविध भक्तिमूलक ग्रंथ रे वर्णित अच्छी विभिन्न पुराण रे विभिन्न शास्त्र रे भक्तिर विविध अंग अच्छी तन्मध्यरु समस्त शास्त्र सार को निर्यास रूप से आमर भक्ति रसामृत सिंधुरे रूप गोस्वामी पाद आम मान प्रकाशित कर भक्तिर मुख्य 64 प्रकार अंग अच्छी से 64 प्रकार अंग मध्यरु 9 प्रकार अंग है प्रमुख जहाँ कि आमर प्रहलाद महाराज श्रीमद भागवतम सप्तम स्कंदरे तांकर पिता हिरण्यकशिपु निकट उपस्थापित कर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्वर्णम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिस्ते नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मन्ये धीतमुत्तमम एथिरे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति कहते तन्मध्य रूप गोस्वामी पाद कहते 5 प्रकार भक्ति प्रमुख से जो 5 प्रकार भितर अच्छी विभिन्न ताकू व्याख्या करनी 2 मिनिट अतिक्रम हो सारे तेणु ये नवदा भक्ति मध्य आत्मनिवेदन अन्यतम से आत्मनिवेदन भक्ति अंगर आचार्य हेले बलि महाराज जो बलि महाराज को आत्मसात करने कृपा करने आज बामन देव रूप प्रकट होते एवं देवता मान जो दुख पाउथिले अदितिंगर एवं कश्यपंगर प्रार्थना क्रमे जगतर कल्याण करने देवता मानकर कल्याण करने एवं आत्मनिवेदन प्रभाव कौन ताको आम मान शिक्षा देवाई आम कि आत्मनिवेदन कर भगवान कृपा भाद नहीं पारिया एभली विभिन्न शिक्षा शिक्षा गर्भक ये जो बामन चरित्र बलि चरित्र अच्छी अष्टम स्कंदर विस्तार वर्णना कराई कहवाई आउ समय नहीं 3 मिनिट अतिक्रम हो सारी तथापि अंतिम अवसर रे जेहेतु कृपा देसी तेणु 3 मिनिट अतिक्रम कर मोर धृष्टतमाई मु आपण मान निकट में क्षमा प्रार्थना करी मोर यही वाणी को एठारे मु विराम प्रदान करुच्ची कृपा सिंधु पतितानां पावने वैष्णव्यो नमः। जय जय श्री राधे दंडवत प्रणाम महाराज आपण मानकर श्री चरण रे आम अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुचु। ये सत्र आरंभ रे राधाकांत महाराज कीर्तन द्वारा आम मान को आप्लुत करी आम मानकर हृदय अंतकरण को शुद्ध करथिले पुणी अंतरे आपण द्वारा मध्य आम मानकर ए मलिन अंतकरण को मध्य आपण शुद्ध करने प्रयास करथिले। आपण मानते सत्र एई चिंतन सत्र आपण माने होचंदी भूषण स्वरूप तेणु आपण मानकु गीता चिंतन चंचरिका तरफ प्रणाम पूर्वक आम माने कृतज्ञता ज्ञापन करुचु। आपण माने यही सत्र ये उपस्थित रही या महिमा मंडित करंतु ये सत्र को तेणु आज ये सत्र काल विलंब होता अधिक किसी कहीपरुनी खाली केवल विष्णु प्रसाद को कहूची जे जो हिरण्यगर्भ कथा से प्रश्न पचारि हिरण्यगर्भ से तो जानी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः प्रतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम ये सूक्त वर्णना कराई इंद्र सूक्त पर जो हिरण्यगर्भ सूक्त अच्छी वेदरे से कौटी हिरण्यगर्भ को ब्रह्म रूप से कहुई तेणु तैतरीय ब्राह्मण रे छांदोग्य ब्राह्मण रे नाना उपनिषद प्रजापति रूप से हिरण्यगर्भ को कहुई हिरण्यगर्भ को सायणाचार्य प्रभृति पंडित माने
प्रजापति संगर अभिन्न रूप से प्रतिपादन कराई अनेक शास्त्र रे सबू हिरण्य गर्भ कही वैदिक साहित्य तो यार अनेक चर्चा अच्छी परवर्ती काल में आचार्य चरण करेंगे तेणु मुझे कही आज सत्र में समस्त चरण में अनंत कोटि प्रणाम निवेदन पूर्वक ये सत्र को इठार समापन प्रणाम प्रणाम धन्यवाद महाराज दंडवत प्रणाम। प्रणाम जय जय भगवान जय 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 श्री राधे प्रणाम प्रणाम गुरुजी।